Hi guys, Bhavesh Jain. Welcome you all to the Ghar Baitho Padho series. This is my second video. The first lecture has been uploaded on YouTube of Ghar Baitho Padho channel as well as my personal channel also. And before moving on to the second lecture, I would like to request you guys, ki please support us. This is a very noble cause, and we want to contribute to the society as much as we can. And for that, we need your support. So please, what you just have to do is you just have to share this video, comment on this, like, subscribe, everything what you can do on the YouTube. So please do that. Okay, now moving on. Please go and check out the first video also. That video contains my personal introduction as well as the introduction about the standard 6 geography. Okay, I have covered what exactly the solar system is, what is clusters, what are galaxies, and all that I have covered in that video. So please, I request you all to watch that video first and then come to this second lecture. Okay, so this will be available in the playlist itself. Once you click on that geography channel, you'll get the lecture from 1 to let's say 10, 12, 13, 15, whatever it is. Okay, so what else? Let's begin. Okay, firstly, I would like to show you the Google Earth, which did not showed up here in the last lecture. So here I'm showing you the Google Earth, what exactly it looks like. See, in the previous video, I talked about what are clusters, what are galaxies, what is solar system, what are planets, stars, asteroids, and of that planet we live in a Earth planet. So ये Earth है, ये जो आपकी screen के सामने है, this is the Earth. ये full is Earth. ये. Okay. अभी मैं solar system भी आपको दिखा देता हूँ. Okay. So what you can see on your screen is a black head. This black portion is called space, outer space. Okay. और ये जो which you are seeing is blue in color is Earth. हमारा Earth का color blue इसलिए है क्योंकि Earth is filled with water on 79%. Okay. इसलिए ये blue दिखता है from space. So this is what space looks like. I'll take you to the space altogether. ये space. Okay. ये हमारा planet Earth. This is space. Now one more thing. There's one important thing is the sun, the brightest and the largest star in the solar system, in the known solar system. Okay, there are a lot many solar system, but we know this. So you can see the Earth is divided into two parts. Okay, this line you can see. ये वाला area थोड़ा bright है and this is dark. Why it is bright? Because you can see it is sun facing and the sun rays are directly falling onto this part and hence making it bright. Okay. So I hope you've seen this, and this is the map. ये map है. ये was Google Earth. Okay. So ये पूरा मैप दिख रहा है आपको. इसी का मैंने सैटेलाइट व्यू आपको दिखाया था. तो ये मैप इसलिए है क्योंकि ये here you can see all the political borders. तो ये इंडिया है, ये चाइना है, मंगोलिया, रशिया. So this is the whole Asia. ये जो पूरा पार्ट है जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, this much. Okay. So this whole is nothing but the Asia. और ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. मैं आपको कॉन्टिनेंट दिखा रहा हूँ. So this is Asia, this is Australia. Okay. ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पूरा this much. ये पूरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. Okay. This much is यूरोप. ये इतना यूरोप में है. Okay. This is Europe. Now on the other side, this is North America, Canada, Mexico, this United States of America, and this is South America. And this is one more, the Antarctica. Okay. So these are the continents. Okay. One more thing you can see over here is this line. Okay. What this line is. See, as you can see, this line is dividing the whole Earth into two parts. One is this part, and the other is this part. This part is known as northern hemisphere. Again, this is in the north, and that's why it is northern hemisphere. This part is known as southern hemisphere.
because this is in the south. Okay, so where India is in northern hemisphere. Why northern? Because it lies north to this line. Now I'll say what this line is known as. This one, what this line is. So this line is known as equator. इक्वेटर मतलब ये लाइन अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेटर. ओके, होप यू आर क्लियर एट दिस पॉइंट. अभी तक हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा. आई जस्ट शोड यू व्हाट सोलर सिस्टम इज. सैटेलाइट व्यू पूरा दिखाया अर्थ का और सन का. उसके अलावा मून भी होता है, वो मैंने आज नहीं दिखाया, बस बहुत हैवी हो जाएगा, बाद में देखेंगे उसको. फिर मैंने दिखाया मैप क्या होता है. मैप में पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपको दिखेगी. मैंने कॉन्टिनेंट्स दिखाया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. These are the continents. ये सब दिखा दिया मैंने आपको. Now I'm talking about this line. This line is nothing but equator. What this line does? This line cuts Earth into two equal pieces. एक नॉर्थ है और एक साउथ है. नॉर्थ का हिस्सा इक्वल है, साउथ का हिस्सा भी इक्वल है. इंडिया लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. ये इंडिया है. इंडिया लाइज इन व्हाट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इतना तक ठीक है? यहाँ तक ऑलराइट. चलो, और ओशन भी दिखा देता हूँ. ये इंडियन ओशन है. ओशन मतलब पानी. इंडियन ओशन. This is Pacific Ocean, North Pacific, South Pacific. Pacific is big, and that's why it is divided into North and South. This is Arctic Ocean, as you can see, Arctic. This is Southern Ocean. Okay. Now one is remaining, which is the Atlantic Ocean. This whole is the Atlantic Ocean. Okay. All right. So you've seen the ocean, you have seen the continents, you have seen Earth, you have seen solar system, everything. You have seen the equator. This is very, very important. Remember, equator divide Earth into two equal parts, Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. ये लाइन तो आप देख सकते हैं, ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है. दिस इज हॉरिजॉन्टल है. तो एक लाइन ऐसी भी आती होगी ना बस कि वो नॉर्थ टू साउथ हो. ठीक है, एक लाइन ऐसी भी आएगी, वो कौन सी होगी? नॉर्थ टू साउथ. वो आगे हम लोग टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखेंगे. अभी मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ कि जैसी एक लाइन यहाँ पे है, वो एक लाइन वैसी यहाँ पर भी आती होगी. ये एग्जैक्ट यहाँ से जाती है. यहाँ पर भी एक लाइन आती है. ये लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. कम ऑन वंस अगेन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ईस्ट वेस्ट वाली, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेटर. और ये एक और लाइन जाती है जहाँ पे मेरा कर्सर या फिर जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, यहाँ से एक लाइन और निकलती है, उसका मैं बोलता हूँ प्राइम मेरिडियन लाइन. मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन. ओके, तो प्राइम मेरिडियन लाइन क्या करता है? अर्थ को दो हिस्सों में वापस बांटता है. ये लाइन भी एक तो होती है ईस्ट और दूसरा होता है वेस्ट. ओके, तो यहाँ से एक सपोज लाइन गई, ये वाला पार्ट है ईस्ट और ये वाला पार्ट है क्या? वेस्ट. ओके, तो अभी तक आपने इतनी चीज देख ली भाई कि इक्वेटर नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ हो गया. यहाँ से एक लाइन गई, वो लाइन जाने के बाद क्या होता है? ये लाइन से यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट, और यहाँ पे क्या होता है? वेस्ट. तो चार हिस्से मैंने, चार टुकड़े कर दिए अपने अर्थ के. समझ में आ रहा है ना? नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नॉर्थ साउथ जो डिवाइड करती है वो लाइन होती है इक्वेटर. ईस्ट वेस्ट जो डिवाइड करती है वो लाइन होती है क्या? प्राइम मेरिडियन लाइन. प्राइम मेरिडियन लाइन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, ऑलराइट. All right. Now let's come to the textbook. Now let's come to the textbook. Okay, let's start again. So this is your textbook is. Okay, this is your whole textbook. कल मैंने पूरा ये सब पढ़ा दिया था. The first page itself, which you can see the two people holding the earth. I told you all this yesterday only. Then I also told you about this. What exactly are the areas you're going to learn? The earth and the granny pool. So this is the area which I'm starting today. Okay, this is the first unit which I'm starting today. So these are things you will be learning. Don't go into the technicality of this. I'll be saying you क्या है, बहुत easy तरीके से करेंगे. ये first chapter करवा रहा हूँ मैं, the earth and the granny pool, which is a part of general geography. अच्छा, total आप लोग के बुक में standard 6 में यहाँ से देखेंगे तो ये total 10 chapters है. Okay, total 10 chapters है. I'm going to start with the first chapter today, standard 6. Okay. So the earth and the granny pool. Make friends with maps. This I have already shown you कि भाई इतने सारे कॉन्टिनेंट होते हैं. एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया. सो दिस आई शोड यू ऑन दी गूगल अर्थ. ओके, सो ये सब मैंने दिखा दिया आपको कि ये अर्थ होता है. अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि अर्थ जो है
इट इज इन स्पेरिकल इन नेचर। अभी आपने जो देखा था पहले, थोड़ी देर पहले, वो आपको लग रहा था कि सर्कल है, इक्वल नॉर्थ साउथ और इक्वल ईस्ट वेस्ट हो जाता है। इक्वल होता है, बट ऐसा नहीं है कि टिपिकल इक्वल होता है। इट इज नॉट प्योर सर्कल, इट इज स्पेरिकल। आई विल शो यू वन मोर थिंग। सी, दिस इज द स्क्रीन। आई शो यू कि हाउ अर्थ लुक्स लाइक। भाई अर्थ ऐसा है, ठीक है। दिस इज हाउ अर्थ इज। ये अर्थ है अपना, इमेजिन दिस इज अवर अर्थ। ओके भाई, ये एक लाइन जा रही है, वन लाइन इज गोइंग फ्रॉम दिस। ओके, ये एक लाइन हो गई। अच्छा, ये आई टोल्ड यू, ये लाइन क्या है भाई? इक्वेटर है। अच्छा, ये लाइन क्या कर रही है? ये नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये वाला हिस्सा है नॉर्थ और ये वाला हिस्सा है क्या? साउथ। ओके, अगेन आई टोल्ड यू कि देयर इज वन लाइन आल्सो व्हिच इज गोइंग फ्रॉम हियर। ऐसी भी एक लाइन जा रही है जो कि ईस्ट वेस्ट कर देगी। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ये यहाँ तक समझ में आएगा? तो ये स्फेरिकल इन नेचर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस नॉर्थ डिस्टेंस इज लेस देन द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस। मैंने क्या बोला? देखो भाई, मैंने ऐसा बोला कि स्फेरिकल है, सर्कल नहीं है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? इट्स श्रिंक फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ एंड द बल्जी फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, टॉप से ऐसा थोड़ा प्रेस हुआ है और ईस्ट वेस्ट से थोड़ा ऐसा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। एंड दैट्स व्हाई यहाँ की लाइन का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाले का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होगा फ्रॉम दिस डिस्टेंस। ओके, तो यही डिस्टेंस आपको अभी पढ़ना है कि एग्जैक्ट क्या होता है। ओके, दिस इज व्हाट आई मेड। This is north, this is south, this is west, this is east. This line is known as equator. This line is known as prime meridian. So you got to remember this. Okay. So go on to the next topic. I'll show you the now textbook itself so that we can comfortably read it. Okay. Come on. So ये लाइन सबसे पहले ये बता रही है कि भाई अर्थ में ग्रेटिट्यूड इतने कॉन्टिनेंट्स है, और ये लाइन में ये बता रही है एक्सप्लेनेशन में कि भाई ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ये 12,714 किलोमीटर की है, और ये वाली जो लाइन है वो 12,756 किलोमीटर की है। ये अपना अर्थ हो गया। ओके, तो ये जो लाइन है वो क्या एक्चुअली मैंने अर्थ पे बनाई? सो इट्स नॉट द केस। अर्थ पे आई कैन नॉट ड्रॉ लाइन, नोबडी कैन ड्रॉ लाइन। ओके, अर्थ पे हम लाइन बना नहीं सकते, तो लाइन किस पे बनाएंगे? लाइन हम लोग बनाएंगे ग्लोब पे। ओ भाई, अब वो ग्लोब क्या है? सो आई शो यू व्हाट इज ग्लोब। ओके, नाउ लेट्स गो टू अगेन अनदर थिंग। तो ये ग्लोब है, ये as you can see, I hope you can see on the screen, ये ग्लोब है। ओके, ये ग्लोब में देखो, you can see this other lines। ये वाली एक लाइन जा रही है, 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 ये वाली एक लाइन जा रही है। ये लाइंस क्या होती है मैं बताता हूँ। सी, जूम कर दिया मैंने, एक और फोटो दिखा देता हूँ ग्लोब का। दिस इज दी सेकंड फोटो ऑफ द ग्लोब। ऐसा ग्लोब रियल में दिखता है। so ये ग्लोब है क्या? ठीक है, तो what is this globe? This globe is nothing but this। ओके, now सो अर्थ में मैं लाइन नहीं बना सकता। लाइन क्यों नहीं बना सकता भाई? क्योंकि अर्थ पे वाटर है। अर्थ पे वाटर है, अनइवन नेचर ऑफ लैंड है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। उसके बाद बहुत सारे फॉरेस्ट है, जंगल है, आइलैंड्स है बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। सो इस वजह से, और अर्थ काफी बड़ा है, मैं उस पर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अर्थ पे मैं इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि भाई वो इक्वेटर है, नॉर्थ साउथ, जो प्राइम मेरिडियन है ईस्ट वेस्ट। ओके, तो मैं लाइन कैसे बनाऊंगा? मैं लाइन बनाऊंगा ऑन द ग्लोब व्हिच आई जस्ट शोड यू। ओके, वो ग्लोब होता है, प्लास्टिक का मॉडल होता है, उसके ऊपर मिनिएचर है। इट्स द मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये वाली लाइन जो मैं बोल्ड कर दिया हूँ, ये वाली लाइन
तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज नथिंग बट द मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। और जो बहुत बड़ा है उसका एक रेप्लिका मैंने बना दिया प्लास्टिक में, तो उसको बोलते हैं ग्लोब। इट्स नथिंग बट दैट। ओके, तो मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। अब मैं ग्लोब भी क्यों बनाऊं? सो ग्लोब इज टू फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, अब लोकेशन कैसे निकालेंगे? तो लोकेशन निकलता है भाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज द सेंटर। अब ये लेट्स डू फिगर 1.3 एंगुलर डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो कैसे मैं लोकेशन बनाऊं? जैसे सपोज मेरे को एक्स प्लेस का लोकेशन ढूंढना है और एम इज द सेंटर, तो एम भी तो मैंने बता दिया, ये वाली लाइन क्या होती है भाई? इक्वेटोरियल प्लेन। तो दिखा भी है यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, समझ में आ गया? तो एम इज द सेंटर। अब सेंटर ऑफ द अर्थ से मेरे को एक्स पे जाना है, तो एक्स का क्या डिस्टेंस है मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से बता पाऊंगा। सो देखो, एम से मैं एक्स पे जा रहा हूँ, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे एक एंगल बनाया जा रहा है 30 डिग्री का। कैन यू जस्ट सी दैट लाइन, द रेड लाइन एंड द ग्रीन लाइन व्हिच इज दैट, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इसका मतलब ये है कि सेंटर से ये 30 डिग्री पे लोकेटेड है दी प्लेस और दी सरफेस एक्स। ओके, सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग दी लोकेशन। ये एंगल मेजर करके मैं लोकेशन डिसाइड करूंगा वो सेंटर से कितना दूर है। तो इट इज 30 डिग्री फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अर्थ। इट इज 30 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी अर्थ। ओके, तो ये समझ में आ गया भाई? इक्वेटर नॉर्थ साउथ, प्राइम मेरिडियन ईस्ट वेस्ट। लाइन नहीं बना सकता अर्थ पे क्योंकि वहां पे वाटर्स है, आइलैंड्स है, फॉरेस्ट है, अनइवन लैंड है। इसलिए मैं एक मिनिएचर मॉडल बनाता हूँ अर्थ का, उसको बोलते हैं ग्लोब। और ग्लोब मैं क्यों बना रहा हूँ? टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन दी अर्थ। और कैसे निकालते हैं लोकेशन? लोकेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से कहीं भी सरफेस पे जाना हो, वहां से आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, and that straight line will form an angle, and that straight line will form an angle. So this angle is the place where I want to go to the surface or want to go to the location. I hope यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद अब ये जो मैंने बताया था भाई, इक्वेटर जो है उसके पैरेलल में ही मैं एक लाइंस बना जाता हूँ। And I'll show you again. Okay, I'll show you again. I hope you can see. So this is our Earth. ये अपना अर्थ है, ये इक्वेटर है, द बिगेस्ट लाइन। अब ये इक्वेटर के अलावा भी ना मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूँ, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, पैरेलल पैरेलल। ये ऐसी एक लाइन बनाया, ये ऐसी एक लाइन बनाया। ओके, ये ऐसी एक लाइन, और जैसे मैंने नॉर्थ में बनाया है वैसे भी मैं साउथ में बना सकता हूँ। ओके, ये तो पता चल गया आपको। ये लाइंस जो होती है ना, ये लाइंस, ये देखेंगे आप इक्वेटर से पैरेलल। तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? जो ऐसे रहती है और एक दूसरे को कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती, व्हिच डजंट इंटरसेक्ट एनीथिंग। सो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के ऐसा ऊपर ऐसा ऊपर ऐसा ऊपर ऐसा ऊपर रहती है, दे डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये वाली इक्वेटर थी हमारी, ये दिस लाइन इज इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये क्या है? ये तो मेरा 0 डिग्री था। वाई 0 डिग्री? अगर आप सर्कल देखेंगे तो वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बीच में जो होता है ना एकदम रेडियस या डायमीटर से द सेंटर पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री। अब वहां से जैसे जैसे एंगल बनता जाएगा, ठीक है, अब जैसे ये सेंटर है मेरा, अब ये सेंटर से मैं ऐसे एक ये लाइन डालता हूँ, तो दिस इज 7 डिग्री। फिर वापस ये सेंटर से, ठीक है, ये एक और हो गया। फिर वापस मैं सेंटर से एक और डालता हूँ, ये एक और लाइन डाला, ये एक और हो गया। फिर वापस मैं सेंटर से एक और लाइन डाला, ये एक और एंगल हो गया। सो दीज आर व्हाट? दीज आर फॉर्मिंग एंगल्स। दीज आर व्हाट? दीज आर फॉर्मिंग एंगल्स। तो ये हर एक एंगल ना, ये 0 डिग्री हुआ तो ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, ऐसे करते करते वी कैन गो अप टू 90 डिग्री। ओके, आई अगेन से, तो ये जो ऐसी लाइन बनी, 1 2 3 4, ऐसी कम से कम 90 लाइन्स बन सकती है टोटल। एक एक डिग्री की भी एक एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, 10 10 डिग्री की 9 लाइन्स बना सकते हो, 1 1 डिग्री की 90 लाइन्स बना सकते हो इन जस्ट द नॉर्थ पोर्शन ऑफ द अर्थ। ऐसे ही अकॉर्डिंगली साउथ में भी है, साउथ में भी आप 1 1 डिग्री की एक एक लाइन बना सकते हो, दैट इज 90 लाइन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड 10 10 डिग्री की 9 लाइन बना सकते हो। I hope you're getting. I'm just drawing it in this paint application. I hope you are just getting what I'm trying to say. Okay. Again, I'm saying equator center से मैं line बनाता हूँ, एक एक डिग्री का एंगल बन जाएगा।
तो यू कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर दी पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो पैरेलल लाइंस को बोलते क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ईस्ट टू वेस्ट जो फ्लोइंग हो रही है, जो सीधी है, पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करती, दिस लाइन आर नोन एज लैटिट्यूड्स। ठीक है, ओके, आई विल कम अगेन टू टेक्स्ट। चलो बैक। सो ये था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो मैंने अभी आपको ड्राइंग करके बताया कि भाई पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है। पैरेलल्स होती है और उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। दीस लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड, जो इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर के नीचे रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर। रिमेंबर 1 डिग्री की यू कैन मेक 90 लाइंस इन नॉर्थ, 90 लाइंस इन साउथ, टोटल 180 लाइंस, और बीच में एक इक्वेटर दैट इज 1 आल्सो। सो क्यूमुलेटिवली कितना हो गया? 181, 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वेटर, 181 लाइंस यू कैन मेक। इतना समझ में आ रहा है? Parallels of latitude. Okay, let's go back to text again. इसमें सिर्फ यही लिखा है कि भाई लाइंस अपीयर ऑन द ग्लोब, लाइंस अपीयर ऑन द ग्लोब। ठीक है, उसके बाद दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ दिस लैटिट्यूड, जो मैंने आपको डायग्राम करके बता दिया। और डिग्री जो बनती है यार, मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, डिग्री हमेशा कहाँ से होगी? मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये देखो, ये सेंटर है सपोज, ओके, तो ये दिस इज 0 डिग्री। तो ये देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90। So this is how we are forming a right angle. And again यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे टोटल 90 डिग्री तक हम लोगों ने 10 लाइन बना दी। अच्छा, एक एक डिग्री की भी मैं लाइन बना सकता हूँ। 0 डिग्री से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा करके मैं एक एक लाइन भी बना सकता हूँ। सो अकॉर्डिंगली ऊपर 90, नीचे 90 प्लस 1 इक्वेटर, 181 लाइंस, 181 पैरेलल्स लैटिट्यूड होते हैं अर्थ में, इमेजिनरी लाइंस। यू रिमेंबर दिस? ओके ओके। अभी उसके अलावा जो है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ऑफकोर्स वो एंगल बढ़ता जाएगा। पहले मैं ऐसे था, अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस थिंग्स इज इंक्रीजिंग, एंड डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है भाई? उसके बीच में वो एंगल बन रहा है और वो एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल कहाँ से बन रहा है? वो लाइन जो है, वो लाइन और ये इक्वेटर जो है, वहां से ऐसा 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 करते करते एंगल बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन इन दिस लास्ट लाइन यहाँ पे। द एंगुलर डिस्टेंस of the other parallel towards north and south goes on increasing away from, जैसे जैसे मैं इक्वेटर से जैसे जैसे मैं अवे जाऊंगा, पहले ये साथ में हूँ, फिर अवे अवे गया, तो उसके बाद क्या होगा भाई? एंगुलर डिस्टेंस मेरा बढ़ते जाएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल हियर टिल नाउ। ओके, यहाँ पे लिखा है द इक्वेटर बाइसेक्ट्स द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स। मैंने बता दिया इक्वेटर जो है बीच का एक लाइन है, वहां पे वो नॉर्थ और साउथ में बाइसेक्ट कर देता है, डिवाइड अर्थ इनटू टू पार्ट्स। The one to the north is called northern hemisphere, which I have already told you, and one to the south is known as southern hemisphere. Okay, yes, break, drink water. सब लोग लॉकडाउन में सेफ रहो यार, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वी आर ब्रिंगिंग यू एजुकेशन इन योर सेल फोन, इन योर लैपटॉप, जस्ट वन क्लिक और सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे पढ़ो का सीरीज यही एम से बनाया कि वी ऑल स्टे सेफ। सैनिटाइजर से अपने हाथ ऐसे धोते रहे बार बार 20 सेकंड्स तक मिनिमम, और बाहर का कुछ भी नहीं खाएं प्लीज। ओके, कमिंग बैक टू अगेन टॉपिक, इक्वेटर बाइसेक्ट्स इनटू टू, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ना, जैसे ये इक्वेटर का एक्सट्रीम पॉइंट आई शो यू अगेन। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं? सो ये है वापस अर्थ है, ये इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये नॉर्थ का, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज नॉर्थ पोल। ठीक है, जहाँ पे सब मिल जाएगा ना, एक सर्कल का टॉप नॉच पॉइंट इज नोन एज नॉर्थ पोल। वैसे ही साउथ में भी एक लाइन होगा, यहाँ पे एक साउथ में भी लाइन होगा, ये बोलते हैं इसको क्या? साउथ पोल। चलो अगेन जैसे इतना ही बताना था मुझे, वापस आता। ओके, वापस इक्वेटर, सदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और जो एग्जैक्ट नॉर्थ है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो एग्जैक्ट साउथ है उसको बोलते हैं क्या? साउथ पोल। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपको पता चल गया है व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके okay, I mean this box is very important. One can draw 181 parallels, one can draw 181 parallels on the earth at the interval of 1 degree. मैंने बताया इक्वेटर है, उसके ऊपर आप 90 लाइंस बना सकते हो 90 डिग्री का, उसके नीचे भी 90 लाइंस बना सकते हो 90 डिग्री का, एक एक डिग्री का एक एक लाइन, और टोटल हो जाएगा 90 प्लस 90 180, और एक इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, दैट इज टोटलिंग व्हाट 181 डिग्रीज।
ओके, तो ये 181 डिग्रीज में टोटल अर्थ हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये वाली लाइन बन सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ईस्ट टू वेस्ट लाइंस। ओके, नाउ अब लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जैसे मैंने बताया कि भाई ईस्ट टू वेस्ट जो होती है वो होती है क्या, लैटिट्यूड। अब नॉर्थ टू साउथ भी जाना पड़ेगा, मैंने बोला नॉर्थ टू साउथ को एक लाइन काटती है, वो है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स व्हाट, ईस्ट एंड वेस्ट, दिस यू ऑल नो। तो यही है यहाँ पे। तो वन ऑफ दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड टू बी एट 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन नॉर्थ टू साउथ। वन ऑफ दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज 0 डिग्री, इट इज नोन एज व्हाट, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो फर्स्ट 0 डिग्री वाली नॉर्थ टू साउथ वाली लाइन है उसको मैं बोलता हूँ प्राइम मेरिडियन। इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, मैं लास्ट में समरी भी कर दूंगा, डोंट इवन वरी, बस जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखते जाओ उसमें। ओके, प्राइम मेरिडियन बन गया, प्राइम मेरिडियन व्हाट, 0 डिग्री नॉर्थ साउथ। और उसके बाद इसमें भी वैसे ही है, वी कैन ड्रॉ 360 मेरिडियंस एट 1 डिग्री। बस ये जो सर्कल है, सर्कल, ये जो सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल का 360 डिग्री होगा, ये एक 90 डिग्री, वापस ये नीचे 90 डिग्री, ये इधर एक 90 डिग्री और ये इधर एक 90 डिग्री। कुछ भी पढ़ा था हमने बता दिया सर्कल के लिए, सो डोंट जज मी ऑन दैट, बट आई वाज जस्ट शोइंग यू एक सर्कल जो होता है उसका 360 डिग्री होता है, वी ऑल नो 90 डिग्री के 4 पार्ट बन सकते हैं उसके इक्वल। सो ऐसा अगर मैं एक एक डिग्री पे एक लाइन बनाऊंगा, ओके, आई विल शो यू ऑन पेंट ओनली, मेरा एक्शन अच्छा नहीं है, पेंट पे बता देता हूँ। ओ चलो, आई होप यू कैन सी नाउ, दिस इज अगेन अवर अर्थ। तो देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसा एक लाइन बनाता हूँ, ये वाला लाइन, वापस एक लाइन ऐसा और बनाता हूँ, वापस एक लाइन ऐसा और बनाता हूँ, वापस एक लाइन ऐसा और बनाता हूँ। ओके, so don't judge on the angles and the lines. What I'm just showing you, you can just prepare 360-degree lines on the earth, imaginary lines of course. Okay, so don't judge me on this, but I was just showing you कि नॉर्थ टू साउथ वाली जो लाइंस जाती है वो 360 लाइंस बन सकती है 1 डिग्री का एक लाइन, तो टोटल 360 डिग्री का सर्कल होता है, उसका एक लाइन बन सकता है। लेट्स गो। ओके, ये हो गया। तो भाई आपने देख लिया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, आपने देख लिया लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब जहाँ पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं उसको मैं बोलता हूँ क्या, द ग्रेटिट्यूड। सिंपल है बॉस, ग्रेटिट्यूड देख सकते हो, ये इमेज देखो आप, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन जाती है वो होती है लॉन्गिट्यूड, लंबी लॉन्ग लंबी। उसके बाद ये होती है ईस्ट वेस्ट वाली, ईस्ट वेस्ट वाली होती है लैटिट्यूड। तो जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं ये पूरा एक वेब बना देते हैं, वेब, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये मकड़ी का झाला है, जैसे नेट जो होता है ना, नेट वैसा बना देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ग्रेटिट्यूड। तो द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फ्रॉम forms a net and is called what, gratitude. I hope it's easy, it's very very easy, you have to remember this. Okay, तो ये gratitude क्या काम है, तो gratitude is very very useful in determining the locations. Okay, we use latitude and longitude for determining the locations. So ultimately latitude and longitude की जगह हम लोग बोल सकते हैं gratitude. So we use gratitude to determine what, location, determining the location. Okay, so this method is being used in the today's world, which you use GPS, काफी use करते हैं GPS, कहीं भी जाना हो we can use the GPS. So GPS भी gratitude वाली टेक्नोलॉजी ही यूज करता है. So it's very very important to know कि भाई ये क्या है exactly. So yeah, the whole purpose of drawing imaginary lines is only one, to find the location, to find any surface, to find any places on the earth. Okay, north south, east west, you have to remember this. North south वाले को prime meridian 0 डिग्री पे, east west वाले को prime 0 डिग्री पे होता है equator. Equator bisects into two, northern and southern hemisphere. और जो है prime meridian वो divide करता है east and west, eastern hemisphere and western hemisphere. So अपना इंडिया जो है वो northern hemisphere में आता है और eastern hemisphere में आता है. If you can imagine wherever India is placed. So India is placed in the northeastern hemisphere of Earth. Okay. कोई भी पूछे भाई इंडिया कहाँ है, so you have to say northeastern hemisphere of Earth. Okay. Exact वो coordinates क्या है हम लोग पढ़ेंगे. तो जब कभी भी आप नॉर्थ में कोई भी प्लेस को आप रेफर करते हो, ठीक है, नॉर्थ में आप ये भाई कौन से डिग्री पे है ये नॉर्थ में, so how you refer to that is
कि कोई भी प्लेस 30 डिग्री पे है सपोज, तो उसके आगे लिखेंगे 30 डिग्री एन, तो 30 डिग्री नॉर्थ, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। ओके, वैसे ही अगर कोई भी प्लेस साउथ में है, कोई भी प्लेस अगर साउथ में है तो यू जस्ट से 20 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री एस, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, लाइक दिस। अगर कोई साउथ में है तो 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ। ओके, वैसे ही ईस्टर्न में भी रहेगा तो भाई 10 डिग्री ईस्ट और 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, ऐसा आपको बताना है। तो ये सब एक्टिविटीज है घर पे, यू परफॉर्म इट। एक यू कैन टेक दी ऑरेंज। ऑरेंज क्यों लेना है? क्योंकि ऑरेंज रिजेंबल्स द शेप ऑफ द अर्थ, काफी स्फेरिकल होता है ऑरेंज, प्रॉपर सर्कल नहीं है। एप्पल, यू कैन इवन टेक द एप्पल। लॉकडाउन में कहीं नहीं मिल रहा है तो बाहर लेने मत जाना, जो घर में है एप्पल या ऑरेंज जो भी है उससे यूज करो आप। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म दिस exercise of latitude and longitude, and latitude and longitude forms what? Gratitude. You have to remember this. So again, coming back to the summary, हम लोगों ने क्या पढ़ा? समरी में ये पढ़ा कि भाई अर्थ में इतने सारे कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ, साउथ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इतने ओशन है, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, पैसिफिक, आर्कटिक। ओके, उसके अलावा भाई ये सब तो पता चल गया कि भाई ये सब है। अब इनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए क्या करना है? तो लोकेशन जानने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड वन मिनिएचर मॉडल दैट इज नोन एज ग्लोब। मिनिएचर मॉडल किसका? अर्थ का। अर्थ का ग्लोब मैंने बना दिया। अब ग्लोब मैंने क्यों बनाया? टू डिटरमाइन दी लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस वो कहाँ है। तो ग्लोब पे what I can do is I can draw imaginary lines and accordingly find the any location. अर्थ हमारा स्फेरिकल इन नेचर है, इसलिए नॉर्थ साउथ थोड़ा कम डिस्टेंस है और ईस्ट वेस्ट थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है। यहाँ से थोड़ा क्रिस्प है और यहाँ से थोड़ा क्या है, बल्जी है। उसके अलावा अगर कोई भी लोकेशन करना है तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ से मैं कोई भी सरफेस का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा और जो भी एंगल वो फॉर्म कर रहा है तो दैट इज माय एक्चुअल डिस्टेंस एंड एक्चुअल लोकेशन। अकॉर्डिंगली ये पढ़ा था हम लोग ने। उसके बाद इक्वेटर पढ़ा था, इक्वेटर बाइसेक्ट्स इनटू नॉर्थ एंड साउथ एंड प्राइम मेरिडियन बाइसेक्ट्स इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके ओके, ये जो इक्वेटर के पैरेलल्स में जो लाइन ड्रॉ करते जाता हूँ, ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ करता है, दोस आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। खाली लैटिट्यूड बोले तो भी चलेगा। कोई भी जो अगर मुझे नॉर्थ में एक प्लेस को रेफर करना है सो आई कैन यूज इट एज 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में रेफर करना है तो 5 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री साउथ। एक्सट्रीम पॉइंट नॉर्थ का जो होता है वो नॉर्थ पोल, एक्सट्रीम पॉइंट साउथ का जो होता है वो क्या होता है, साउथ पोल। ओके, तो साउथ पोल ऑफ कोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, नॉर्थ पोल ऑफ कोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा। इंडिया का है, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। वैसे ही सेम मेरिडियंस भी होता है, मेरिडियंस के पैरेलल पैरेलल लाइन बनाते जाओ तो मिल जाएगा क्या मेरे को, पैरेलल्स, ये मेरिडियंस मिल जाएगा, प्राइम मेरिडियंस। ओके, उसके अलावा अगर आप देखते हैं, ओके, तो इफ यू कैन इमेजिन दोस दिस लाइन, ये लंबी लंबी जो लाइन है ना, ये हमेशा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करेगी। ओके, ये नॉर्थ पोल ऐसा, नॉर्थ पोल को ऐसा कनेक्ट करेगी, ये ऐसा कनेक्ट करेगी, ये वाला लाइन ऐसा कनेक्ट करेगी, वापस ये वाला लाइन ऐसा कनेक्ट करेगी, वापस ये वाला लाइन ऐसे कनेक्ट करेगी। सो यू हैव टू इमेजिन कि ये इसका वन पॉइंट मीटिंग है और यहाँ पे भी इसका वन पॉइंट मीटिंग। तो ये ऐसा लाइन यहाँ पे बल्जी हो रहा है और यहाँ पे वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे वापस जा रहा है, बल्जी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमेशा ये देखना कि ये जो ए है, मतलब अपना इक्वेटर का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से, और ये जो लाइन है इक्वेटर का, ये वाला डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा होगा, और ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ये डिस्टेंस कम होगा। तो जैसे ये डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूँ और कम हो रहा है, ऊपर जा रहा हूँ डिस्टेंस कम हो रहा है, ऊपर जा रहा हूँ डिस्टेंस कम हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, इक्वेटर पे मेरिडियन जब मिलता है, इक्वेटर पे मेरिडियन वाला, इक्वेटर ये वाला इक्वेटर है, इक्वेटर पे मेरिडियन जब मिलता है उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वेटर पे ज्यादा रहता है। इक्वेटर से मैं ऊपर या फिर सदर्न या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाऊंगा, द डिस्टेंस गेट्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और नॉर्थ पोल पे आके तो वो जीरो है, सब लाइन वैसे भी मिल रही है। ओके, तो ऐसे मेरिडियंस में 360 बना सकता हूँ, 360 डिग्री का सर्कल का। और ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने बना सकता हूँ, 181 हॉरिजॉन्टल लाइंस 181, और ये ऐसा करके ऐसी वाली लाइंस कितनी बना सकता हूँ, 360। होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट चैप्टर। If you have any doubt in this chapter after performing all these activities, do it yourself column वगैरह जो है, if you have any doubt you can comment it on the comment section and I'll take it up in the next session and accordingly we'll try and solve your doubt. So भाई please safe रहो, घर पे रहो। accordingly आज का session यहीं खत्म होता है and भावेश जी signing off, bye.